नॉट, जो अभी हमारी थोड़ी हंसी खुशी हुई है उसके बाद ये स्पीच थोड़ी बोरिंग लगेगी. इट्स बेसिकली हिस्ट्री फैक्ट्स. So Ram Prasad Bismil was one of our famous freedom fighters back in the day, but he is a person who is now forgotten among a lot of freedom fighters who came along the way. So the speech is about him and what he has taught us. So I'm sorry ये थोड़ा सा बोर करेगी, but this is what I came up with. Okay. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. The desire for revolution in our hearts, we shall see how much strength lies in the arms of the enemy. These immortal lines became a war cry for India's freedom struggle against the British, and the man who immortalized them was Ram Prasad Bismil. Good afternoon, fellow aspirants and my beloved teachers. Today I would like to share the life and the words of the man who inspires me the most and whose stories and poems gave me the motivation to achieve my dreams. With a desire for freedom and revolutionary spirit resonating in every inch of his body and his poetry, Ram Prasad Bismil was among the most notable Indian revolutionaries who fought British colonialism and made it possible for the nation to breathe the air of freedom. The ideals of freedom and revolution got ingrained in his mind after he read the death sentence passed on Bhai Paramanand, an Indian nationalist and Arya Samaj missionary. His ideals of freedom struggle stood in stark contrast to that of Mahatma Gandhi. After conflicting views and growing resentment with the Congress party, he formed the Hindustan Republic Association, which soon had leaders like Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. On August 9, 1925, Ram Prasad Bismil, along with his companions, executed the plan of looting the train at Karakuri near Lucknow. It is believed that they looted the specific train because it was carrying money bags which belonged to the Indians and were being transferred to the British government treasury. Within a month of the attack, the angered colonial authorities arrested more than a dozen HRA members. Kakori conspiracy, Ram Prasad Bismil, along with 3 other revolutionaries, were sentenced to be hanged. In barrack number 11 of Lucknow Central Jail, Bismil wrote his autobiography, considered as the finest works in Hindi literature, along with the cult song Mere Rang De Basanti Chola. For me personally, he is the brightest, inspiring us among the galaxy of freedom fighters who struggled for more than a century to overthrow the British rule. For there has never been a dearth of icons or role models in this long struggle for independence. Everyone inspires, be it Rani of Jhansi or the barely clad everyday people who took part in the Dandi March. From the royals to the peasants, from cities to the hamlets, every nook and corner of India full of examples and inspiration. Ram Prasad Bismil inspired me the most because his powerful angst against the injustice came out in the form of potent poem Mera Janam. At the mere age of 18, just a year elder to me, his depth of understanding, his perception, his vision, his empathy for fellow humans is the hallmark of Indian culture, which has sustained many ups and downs. He has taught me the power of teamwork, communication, and self-sacrifice. Most importantly, he taught me to take a stand for what I believe in, to take a problem head on, be brave, bold, unafraid, and level-headed while solving it. Yet, in the years since independence, India has gradually forgotten the heroics of this legend, who streaked across the anti-colonial nationalist sky like a blazing meteor. The spirit of rejuvenation which once inspired us Indians is as relevant and needed in the India of 21st century, where the challenges may be different, the enemy intangible, but the spirit and selfless attitude of sacrifice, the need to rise above self-centric outlooks for the greater good of we as people remains very much the same. Today more than ever, we need to look in the eye of the problem and say, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जैसे वो चुप तेरी महफिल में है. ए शहीद ए मुल्क ओ मिलत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चा घर की महफिल में है. वो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, अब हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है.
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थैंक यू। और एक चीज मैं सबको कहना चाहूंगा on this particular day as a something from my heart। एक एम हमारा शुरू से था कि क्लास में जितने भी बच्चे हों सुपर 30 बैच all should get selected। सबको हम IIT एम नहीं पहुंचा सकते, ना पहुंच सकता कोई, लेकिन आप सब अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हैं, बेहतरीन कॉलेज में पहुंच सकते हैं। ख्याल रखें all of us can reach to the finest colleges। आप अपना लाइफ 4 साल बाद परफेक्ट जर्नी से स्टार्ट कर सकते हैं। It may not be only IITs, IITs for some people, BITS for some people, triple IITs for some people, NITs for some people, Tech Thapa for some people। But all these colleges के जो बच्चे होते हैं मैं आपको बताऊँ, they reach up to the finest places, not just AIIMS। चाहे आप बात करें मौलाना की, चाहे आप बात करें PGI रोहतक की, चाहे आप बात करें GMCH चंडीगढ़ की, the people also do wonders। अगर आप PGI के डायरेक्टर चेक करोगे तो आउट ऑफ लास्ट I think 15 years 4 बार जो PGI के डायरेक्टर हैं they are from पंजाब and हरियाणा। 15 years मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट I'm just talking about। Anyhow, the idea behind that is एक हम कहते हैं सब बन सकते हैं, क्या लगता है सब पहुंच सकते हैं। जैसे थीम जिस पर हम सारे इकट्ठे हमेशा तैयारी सोचते रहते हैं कि एवरीबॉडी शुड रीच, और यही हमारा थीम है सुपर 30 का, सारे पहुंचे जो उसमें बेहतरीन जो जा सकते हैं वो उसको टच कर जाए, लेकिन कोई बचे ना, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। एंड द सेकंड वन आई से दैट डोंट जस्ट लुक अप टू द फॉरेन कंट्रीज ओनली। देयर इज अ कॉमन ट्रेंड, सबको एक ही चीज दुनिया में लगती है जैसे एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सब फॉरेन एजुकेशन। आई हैड अ पर्सनल little thing to share। मैं I was selected in Siemens after IIT Roorkee। I was in research for 2 years nearly। मैं रिसर्च में बहुत ट्रस्टेड था। I worked in Siemens। मेरा जो हेड था he was Thomas something, like he was from London। तो मुझे बहुत ज़्यादा जॉब पसंद नहीं आ रही थी, I wanted to go abroad, but मुझे सब चीज़ें देखकर लगा कि यार कल्चर इज लाइक, फिर तुम इन्हीं के काम कर रहे हो बिकॉज दे पे यू, दे गाइड यू, एवरीथिंग लाइक दिस। हम जितने भी बहुत फॉरेन सर्विसेज में जा रहे हैं, फॉरेन कंपनीज में जाते हैं, अल्टीमेटली दे पीपल ऑलवेज जो टॉप सीट्स होती हैं उन्हीं के लिए रिजर्व होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ टाइम पॉलिटिक्स चलती है जो वो फाइनली वो जो किसी को काम आता है तो काम तो देंगे वो उससे, लेकिन दे आर जस्ट टेकिंग यू स्टेज, फिर दोबारा वो सारा जो मेन है, सारा जो मेन इनकम है दे गो टू देयर कंट्री, सारा वहीं लेके जाते हैं। देन आई लेफ्ट दैट जॉब, सोचा कुछ ऐसा करें जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हो सकें, बहुत सारे प्यारे इंजीनियर्स पैदा हो सके, बहुत सारे प्यारे डॉक्टर्स पैदा हो सके विच कैन सर्व देयर ओन कंट्री। इतने प्यारे कि दुनिया से लोग यहाँ पर आए कि यार टेक्नोलॉजी चाहिए तो यहाँ चलते हैं, इलाज चाहिए वो शुरू हो गया। बता दूँ आपको इलाज यूएस में, इफ यू नो दैट, मैं आपको ज़्यादा बता देंगे इसके बारे में। यूएस एंड ऑल अदर कंट्रीज में से अब गुड़गांव, दिस चंडीगढ़ इज गेटिंग द बेस। यहाँ पर घर में जैसे पीजीज होते थे ना, नाउ देयर आर सेंटर्स, घर पे सेंटर्स खुल गए कि फॉरेन से लोग इलाज करवाने आएंगे, दे हैव अ कंसल्टेंट्स देयर, फॉरेन से इलाज करवाने यहाँ पर पीजीआई में आएंगे या कहीं आएंगे, पूरा घर इसी पे लगा हुआ है। 1 महीने के लिए आपका कमरा बुक कर दिया पीजीआई के साथ और इलाज करवा के दे विल गो बैक टू यूएस बिकॉज़ दे से दैट यहाँ पर जो हमारा इलाज हो रहा है दैट इज मच मच बेटर देन जो यूएस में हो रहा है। कैन यू थिंक ऑफ दैट? यूएस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज़ इट इज टेक्निकली दे आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। वो सारे दुनिया के सबसे अच्छे ब्रेन्स होते हैं उनको ले लेते हैं, उनका खुद का ना हो लेकिन उनके पास एक स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है। दे से दैट इफ यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड विल गिव यू द मैक्सिमम प्राइस। बाकी फिर हम पूरी दुनिया से बाद में कर लेंगे कुछ ना कुछ करके, लेकिन विल गेट यू। सो सिर्फ यही नहीं होता कि जस्ट रीच अप देयर, सिर्फ वहां पहुंचना है, उसके पीछे एक रीजन इज अगर आप सच में लाइफ इमोशनली जीते हो, दिमाग से जीते हो, दोनों चीजें इमोशनली प्लस दिमाग से जीते हो, देन यू लिव द बेस्ट ऑफ द लाइफ। मैम आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से 2 बार इनको कॉल है कि आप एज ए साइंटिस्ट वहाँ सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी 20 ग्रांड में, 30 तो कि आप अभी आ जाइए, आज PR अगले दिन से आप कर दीजिए इतने फॉर में साइकियाट्रिस्ट आई थिंक वहाँ। सो जो फॉर इज सच ए गुड कंट्री, वहाँ साइकियाट्रिस्ट की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। So there's actually think of in our words
because they can guide even the best brains. Best brains को ज़्यादा जरूरत पड़ती है. आपको ये बहुत अजीब लगेगा. She used to tell me कि मुझे मत बोलना कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ. The best brains think a lot, analyze a lot. बहुत ज़्यादा सोचते हैं. जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, confusions आएंगी. Then they need somebody who can analyze कि मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं. उनको ज़्यादा जरूरत पड़ती है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की, because they can always point out कि हाँ भी मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस गलत साइड तो नहीं जा रहे, because they can think. जो सोच ही नहीं सकता उसको दिमाग की क्या दिक्कत आनी है? You know, unused brains. They're always the one जिनको कोई दिक्कत नहीं आती. But जो परफेक्ट ब्रेन्स अच्छे, जितने ज्यादा अच्छे डीपली लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, जितना ज्यादा सोच रहे हैं, जितना इंटेलेक्चुअली बड़े काम कर रहे हैं, they people need more psychologists, more psychiatrists, not just for some problem, just for constant interactions कि ठीक है मैं इस तरह सोच रहा हूँ, मुझे इस तरह से सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, ये इवेंट्स ठीक है कि नहीं. they keep on monitoring themselves in all possibilities. फॉरेन में देखते हैं ये चीजें स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाती हैं. every school they are having a psychologist, and और उससे वो गाइड करते हैं कि कौन से बच्चे में किस पर्टिकुलर फील्ड में जाने की ज़्यादा टेंडेंसी है, उसको उस फील्ड में पढ़ाया जाए rather than सब कुछ पढ़ाया जाए. समथिंग इज दिस काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग. एनीहाउ द आइडिया वाज फॉरेन कंट्रीज के लिए बहुत बेवकूफ दुनिया में आपको मिलेंगे. सिर्फ उनको लगता है बस फॉरेन इज एवरीथिंग. एक सबसे बड़ी बात, दे आर लुकिंग ओनली फॉर देयर करियर. मे बी दे विल गेट लिटिल मोर अर्निंग्स, बट लाइफ इज विद योर डियर एंड डियर वंस. जो अल्टीमेटली हैप्पी होते हो. आपकी स्किल जो है दैट इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. स्किल जितनी आप अचीव कर सकते हो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यू आर गिवन अ टैलेंट. उस टैलेंट को हमेशा यूज करो कि आप अपने आप को स्किलफुल कर सको, ताकि आप 1000 लोगों की मदद कर सको. जितने आप स्किलफुल होगे, जितने आप बेहतरीन बनोगे, उतना ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगे. अपनी कोई मदद नहीं कर पाता. सबको कोई सेम रोटी चाहिए, नोटिस दैट, राइट? एंड द सेकंड थिंग इज व्हेन पीपल गो टू फॉरेन, आई हैव सीन, पर्सनली सीन, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी छोटी सी एज में भी आपको नहीं पता होगा. वहां तक बातें पहुंच चुकी हैं, बाकी सब जानते हैं. देयर पेरेंट्स जो उनको भेजने के लिए आज की डेट में जब मैं देखता हूँ, इवन दे आर डूइंग इट. नहीं बेटा जाओ, हमने इतनी मुश्किल से पैसे वैसे इकट्ठे कर लिए, क्योंकि +2 के बाद तो करोड़ लग जाते हैं बाहर जाने के लिए, और पीजी वगैरह के लिए जा रहा हूँ तो मे बी 50 लाख और समथिंग पैसे करके बाहर भेज रहे हैं. एंड फाइनली दे नेवर टर्न बैक. दैट्स द लास्ट स्टेज. टर्न बैक नहीं, अगर साल में एक बार आ गए, 2 साल में एक बार आ गए, दिस आर द काइंड ऑफ लाइफ दे लिव. कि उन्होंने सारी जिंदगी उन्हें बच्चों को पाला, एंड फाइनली दे आर सेटल्ड इन द फॉरेन. कहते हैं अभी हम यहाँ तो ये नहीं होता, यहाँ ये नहीं होता, वी आर सेटल्ड, हम यहाँ हमारा कल्चर डिफरेंट है, यहाँ हमारा ये नहीं होता. एंड फाइनली दे लिव लाइक दिस, एंड वी कॉल दिस वन एज ह्यूमंस, वी कॉल दिस वन एज सक्सेसफुल लाइफ. कि फाइनली जिन पेरेंट्स ने सब कुछ कराया, बनाया यहाँ तक पहुँचाया, एंड फाइनली सीधा टाटा बाय बाय, यार मामा यहाँ पे कारें हैं, यहाँ कारें भी ठीक नहीं, रोड्स पे खड्डे हैं, वी कांट लिव लाइक दिस, तो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, इनफ ऑफ दैट. एंड दे लीव देयर पेरेंट्स. आई हैव सीन पर्सनली. यार ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में बातें ना चलती हों. किसी न किसी ने जरूर कभी ना कभी सुनी होगी. आप बहुत छोटे हो मुझे पता है, लेकिन इतनी ज्यादा डीपली रूटेड हो चुकी हैं बातें कि हो नहीं रही किसी के घर हो रही है, ये हर दूसरे तीसरे घर में हो रही है. इफ यू सी माय होम, मेरे घर के सामने 3 घर हैं जिनके जहाँ पे सिर्फ कोई मदर रह रही है, कोई फादर रह रहा है. एक ही घर में मदर, फादर एंड फाइनली पेरेंट. बच्चे 10 साल से आए, चाहे वो सिंगापुर क्यों ना हो, 2 घंटे की फ्लाइट है. सिंगापुर कितना 2 घंटे, 2 घंटे की फ्लाइट है, 2 घंटे. बट they never come back. Okay, they're there. I'm living there for 15, 20 years, 30 years. This kind of life, your best people, your best one is going to have. अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि this is everything, if you think this is everything, फिर आप इतना selfish हो जाते हो. You say that this is everything means I go there, फिर मुझे बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं. That is what we call it as life. अगर आप इसको कहते हो you really got successful, you're earning little better. एंड जो आपके जिन्होंने सब कुछ किया जिंदगी में आपके लिए, ठीक है, एंड यू नेवर सी देयर फेस अगेन. सो ये चीजें ख्याल रख लेनी चाहिए. आई हैव गॉट H1 वीजा. आई विल टेल यू समथिंग. ठीक है, आई हैव गॉट H1 वीजा. H1B is the most common business visa, and I didn't go there. Finally I left. जस्ट मैं छोड़ दिया. I left the job. मैंने कहा नहीं, मैंने जाना नहीं है. ये मैं उससे नहीं कह रहा, ये इसको नेगेटिव भी कहते हैं. बहुत लोगों को मैं बताता हूँ वो नेगेटिव कहते हैं. मेरे दोस्त है बहुत नेगेटिव कहते हैं, साथ में यहाँ पे भी है. बट आई सी माई सक्सेस इन अ डिफरेंट वे. सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती है लाइफ में. बट आई काउंट एज अ सक्सेस. यू मे काउंट दिस 1 2 3 दिस वन एज सक्सेस. आई कैन काउंट दिस वन एज अ सक्सेस. आई हैव अ गुड फैमिली. आई एम लिविंग विद माय पेरेंट्स एंड आई एम लिविंग विद यू. ठीक है, द बेस्ट ऑफ माइंड्स, द बेस्ट ऑफ एटीट्यूड एंड द बेस्ट आई थिंक फेसेस इस एज तक तो होते ही एटलीस्ट.
दिस इज द मोस्ट इनोसेंस यू कैरी। बाद में कब गवा जाओ मुझे नहीं पता, लेकिन आप संभाल के रख सकते हो, अभी तक आप लोगों में है। एंड दैट इज द बेस्ट गिफ्ट आई गेट कि बहुत सारे बच्चे, सारे तो नहीं शायद, बहुत सारे बच्चे अपनी लाइफ ऐसे ले लेते हैं कि उनका टाइम नहीं होगा, पेरेंट्स के लिए होगा, हमारे लिए कहाँ होगा, ठीक है, फिर वो बड़े बन जाते हैं बाद, ठीक है। सो फाइनली 30% और समथिंग वी वांट दैट अपनी क्लास में हम कह सकें 100%। मैंने क्यों बात की 100% की शादी में हम जा सकें, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि हमें खाना खाने का शौक है, बाहर बहुत कम खाते हैं, इट्स अबाउट द जर्नी, दिस सीन यू स्मॉल वंस, ग्रोइंग वंस, सिखाया, पढ़ाया, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। वही चीज़ शायद पेरेंट्स के बाद द टीचर्स, पेरेंट्स का तो मुकाबला नहीं है, बट उसके बाद हम द टीचर, क्योंकि वो भी आपको बिल्कुल उस जर्नी से देखते हैं, आप बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होते, टोटली अनप्रोफेशनल। 10th के बाद आपको लगता है जैसे दुनिया के हम सबसे बड़ा गाया, हम तो जहाज ही उड़ा देंगे लाओ तो सही, उनको साइकिल भी चलाना ना आता ना, वो क्या जहाज चलाएंगे, तो एक बार पकड़ा दो, स्टार्ट करें। एंड दिस काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस है, बट जब +1 +2 में जाते हैं फिर बाद में बात होती है, ठीक है। सो व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग इज you people can become the best in your life. हर कोई बन सकता है, क्या करते हैं, अच्छे कॉलेज तक हर कोई पहुंच सकता है और उससे बेहतरीन करियर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन along with that morals अगर आप रखो हमेशा जिंदगी में, तो I tell you that the life will be such that कि everywhere you will be happy, you will be always happy at home, happy with your near and dear ones, and you will be satisfied that this is about life. Life is not about this, not just about this. We are always running one batch. ठीक है, people said that sir यहाँ पे इस जगह पे 14 सेक्टर में अगर आप 3-4 बैचेस नहीं रन करते, nothing can be taken out something. So I'm just telling you, happiness is about कि हम अपना बेस्ट डाल दें, उसके बाद हमें लगता है हमने अपना बेस्ट दिया, किसी ने हमें कुछ कहा तो हम कोशिश कर सकते हैं, अगर हमारे हाथ में तो हम अपना बेस्ट दे दें, फाइन। और आपसे एक चीज़ मांगते हैं आज, अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर दो आज ये इवेंट के बाद, ठीक है। गिव योर बेस्ट, जल्दी बना लो कि यार सर जो कहोगे वी आर रेडी टू डू दैट, धोखा नहीं देंगे, इस चीज़ में हम धोखा नहीं करेंगे, इस चीज़ में हम धोखा नहीं करेंगे। सर कर लिया, थोड़ा बहुत घुमा ली बात को कि नहीं कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मोबाइल से भी तो बहुत तंग कर रहे हैं सर, मुझे अभी भी तंग कर रहे हैं मोबाइल से। यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस, और आपको बहुत हैरानी होगी, आपके हाथ खड़े करके मैं प्रॉमिस देने वाला हूँ, यू नो दैट मोबाइल्स, यू आर गोइंग टू लीव मोबाइल्स टिल यू गिव योर कॉम्पिटिशन। लीव मोबाइल सिंपली मीन्स इट कैन बी स्क्रीनिंग टाइम ऑफ 1 आवर मैक्सिमम, और जल्दी जब आप पढ़ते हो उस टाइम पे आप अपना मोबाइल को साथ में रखो, जब आप पढ़ते हो नहीं रखते जाके देख सकते हो, मोबाइल देख लिया, लेकिन इट विल बी इन अ डिफरेंट रूम। एंड पढ़ाई के वक्त अपना मोबाइल आप बिल्कुल साथ में रखोगे, और स्क्रीन टाइम चेक कर लेना, स्क्रीन टाइम जो भी होगा दूर रखा हो मोबाइल, इट शुड बी मोर देन 1 आवर। चाहे इसमें तुम्हारा दोस्त तुम्हें ये कहे कि नहीं यार ये तो अब बात नहीं करता, फोन नहीं उठाता, फोन करो फोन नहीं उठाता, फोन करो फोन नहीं उठाया, ऐसे लगते जैसे आई डोंट नो कि जैसे दुश्मनी हो गई, एक घंटे बाद वो दुश्मन हो गया, फोन मेरा फोन नहीं उठाया, ठीक है, वो पढ़ नहीं सकता हो। अब सारे सुन लो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स वो होंगे, आप बता सकते हो एक दूसरे को, और इस जर्नी से आप बताओगे कि यार जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, मैं मान लो 8-10 घंटे पढ़ाई है, उस वक्त मैं फोन को आसपास रखूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रखूंगा। तो अगर मैं फोन नहीं उठाता, ये सब एक दूसरे को बता सकते हैं, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि मैं तेरा फोन नहीं उठाया, मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, दिस इज अ प्रॉमिस आई मेड माय सेल्फ, ये हमने प्रॉमिस किया कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा 10 घंटे 12 घंटे जो भी है, समथिंग दिस वन इट विल बी साइलेंट, नथिंग इंट्रा, नो एक क्वेश्चन भी आपकी जिंदगी चीज कर दे, तैयार रखना। और अगर आपने नहीं सर आधा घंटा देख लिया, 2 घंटे देख लिया, क्या फर्क पड़ता है, 2 घंटे देख लिए, वो 2 घंटे में मान लो आप अगर फ्रेश माइंड 2 क्वेश्चन भी कर सकते थे, और अगर उसमें देखो क्वेश्चन आ गया, तो दैट ईच एंड एवरी मार्क काउंट्स। जब आप रैंक्स देखते हो ना, एक नंबर पे 100 200 बच्चे बैठे होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा आज 2000 4000 10000 वाले में जाते हो, तो वहाँ पे एक मार्क्स पे 1000 बच्चे भी होते हैं, सेम रैंक। So I'm simply telling you, each marks count in your life. Please make sure. ठीक है, thank you very much. थोड़ा सा क्योंकि बड़ी अच्छी बातें सुनाई थी, तो मैं वो बातें जुड़ गई, बता देनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके अंदर लाइफ में याद आएंगी आपको। ठीक है, जब भी हम कोई फैसला लेते हैं ना, तो हमें जिससे हम अटैच होते हैं उससे कुछ बातें याद आती हैं। This is the only way हम डिसीजन लेते हैं। जब हम डिसीजन लेने लगते हैं ना, तो हमें वो सब बातें, उस रेलेवेंट की बातें याद आती हैं। जब हम कहते हैं कि अच्छा ये करना है, अच्छा सर ने ये बात बोली थी, तो वो भी काउंट कर जाती है डिसीजन लेने में। कई बार हम बेहतर डिसीजन इस रीजन से लेते हैं, राइट। तो थोड़ी सी बातें की, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। इवेंट चेंज करते हैं थोड़ा सा है। तो आई थिंक अश्विन सर इज गोइंग टू डू समथिंग। सर कह रहे हैं, सर मैं बात करता है,
असली टैलेंट यूज ही नहीं किया आपने। क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि टैलेंट यूज ना करें तो परेशानी है ना। सर की आवाज ना सुने अगर, है ना। मैं तो देखो माइक लगा के देखना है, बाद में इतनी आवाज सेम डेसिबल पे आवाज सर की आ रही है। अगर मैं सर से कोई चीज मांगूंगा तो मैं सर ये वाला ये दे दो, ये वाला। तो सांत्या सर नहीं जाते जो प्रॉमिस लेने जो बताइए, सोना बंद कर दो, सोने का सपना भी आए तो भी गिफ्ट में चले जाना। तो हाँ मैं ध्यान से वर्ड सुन, सोने का सपना भी है। तो फाइनली एनीहाउ, so let's start this। हाँ मेरा शुरू कर दीजिए। Sorry। Okay, चलो let's start with this। हाँ जी करें, क्या स्टार्ट करें? ओवर का हो गया, रेडी? फाइन। हाँ मतलब रेडी, मतलब साइकोलॉजिकली रेडी। So let's welcome